हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो है चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई से। और ये 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को कवर करेगा पूरे के पूरे चैप्टर में से। एंड फॉर दिस नीट प्रिपरेशन टू इफ यू वांटेड टू पास अ नीट यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, जस्ट बिकॉज ये वीडियो नहीं एक सक्सेस का फॉर्मूला है। बायोलॉजी 360 मार्क्स का होता है और आप 360 में से 360 भी कवर कर सकते हो। बेसिकली किंगडम एनिमल में हम क्या पढ़ते हैं, वी आर लर्निंग द अराउंड 8 to 9 क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड देन फ्रॉम पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, हेमिकोडेटा and you can say echinodermata, and afterwards we are learning about the pisces, chondrichid, osteochids and then amphibia, एओस, रेप्टिलिया एंड मैमिलिया फाइनली। तो इतने सारे टॉपिक में से मैं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को आज कवर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन वन बाय वन। सो क्वेश्चन फ्रंट ऑफ अस, फर्स्ट वन इज इन अ प्लेटिहेल्मिन्स डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट बिकॉज। तो प्लेटिहेल्मिन्स में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट क्यों है वो हम देखते हैं। इट एब्सॉर्ब फूड फ्रॉम जनरल बॉडी सरफेस, नो, that does not absorb food from general body surface. It has sucker and hook in parasitic form, but that is not related to digestive system. It has only one opening that serve as a both mouth and anus. Yes, so digestive system इनके अंदर incomplete होती है, मतलब blind से एक body plane होती है, just because they are having only one opening which work as a mouth as well as anus. So answer of question number 1 is a C. Moving towards the question number 2. So conversion of larva into adult is called. So larva एक ऐसी स्टेज है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में लार्वा होते हैं जैसे फ्रॉग वगैरह होते हैं। सो लार्वा इनटू अडल्ट स्टेज इज बेसिकली कॉल्ड मेटाजेनेसिस, नो, मेटास्टेसिस, नो, मेटामॉर्फोसिस. So metamorphosis is the correct answer. Metamerism is basically related to segment formation. So इसका आंसर हो जाता है C, metamorphosis. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। रेडियल सिमेट्री shown by, so Coelenterata means Cnidaria, Ctenophora means comb jellies and Echinodermata. They all are actually showing radial symmetry. Radial symmetry means when you cut any animal in any plane, either vertical or horizontal, their body is going to divide into equal parts. So that's called radial symmetry. So radial symmetry shown by Coelenterata, Ctenophora, Echinodermata, all. So answer will be D. Moving towards the question number 4. Triploblastic organization and bilateral symmetry starts from which phylum during evolution? तो हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और बायलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक व्हेन एनिमल शोज 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एंड बायलेटरल सिमेट्री व्हेन यू कट एनी एनिमल एंड देयर बॉडी गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय वर्टिकल सेक्शन, दे आर बायलेटरल। सो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिहेल्मिन्स। यस, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केल्मिन्स नहीं, प्लेटिहेल्मिन्स। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 विल बी डी, प्लेटिहेल्मिन्स। क्वेश्चन नंबर 5. In some animal group, the body is found divided into compartment with a serial repetition of at least some organ. This characteristic feature is named as. So ऐसे कौन से characteristic feature है जिसमें छोटे छोटे segment होते हैं? तो I think so question number 2 और 3 में मैंने इसका आंसर दिया था आपको. So answer of this question will be metamerism. Question number 6. The basic fundamental features that enable us to classify animal kingdom is. A basic fundamental feature that enable us to classify animal kingdom is level of organization and coelom. Yes, this is actually there. Cell organization and body symmetry. This is also there. Segmentation and notochord. तो segmentation notochord ये specially NCERT में additional दिया हुआ है. So answer I think so will be all because guaranteed two answer option तो मैच हो ही रहे, थर्ड भी मैच हो रहा है, सेकंड में सिमेट्री. So D will be the correct answer.
So question number 6 answer is D. Moving toward question number 7. So in sponges, spongiocyl is lined by, as you know that sponges basically belongs to the porifera, और पोरीफेरा में हम कोइनोसाइट नाम का एक सेल्स देखते हैं जो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म में काम आता है. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2. हमें कॉलम 1 और 2 को मैच करना है. तो यहाँ पे देखिए ये जो गोर्गोनिया है दैट इज मैचिंग टू ब्रेन कोरल जेल पोर्चुगीज मैन सी फैन को मैच करता है. यहाँ पे सी फैन इज गोर्गोनिया. So A is matching to 5, A is matching to 5, A matching to 5, ये तीन में आंसर दिया हुआ है. तो हमें इन तीनों के बारे में सोचना है. ए ऑप्शन नहीं आएगा इसका. फिर एडमेशिया इज बेसिकली द सी एनिमोन. एडमेशिया B is matching to the C anemone, fourth one. So where fourth is matching? It is matching in B and D. So now C is also gone. अब हमें B और D के बारे में सोचना है. फिर इसके बाद अगर हम ये देखें तो फाइसेलिया, मैंडेरेनिया इज बेसिकली मैचिंग टू ब्रेन कोरेल मैंडेरेनिया 1. सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे C इज मैचिंग टू दी थर्ड वन, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर. सो पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर जो होते हैं वो जनरली होते हैं फाइसेलिया होते हैं. सो फाइसेलिया D मस्ट मैच टू थर्ड. तो यहाँ पे B ऑप्शन में सभी के सभी करेक्ट आ रहे हैं. So let's see. Yes, B is the correct answer of question number 8. So moving towards the question number 9. Correct flow of a water current in sponges. Sponges belongs to the porifera and their correct flow is ostia is the one organ through which water comes in. That is a spongocyl and osculum from which water goes outside or waste goes outside. So here answer will be ऑस्टिया. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ऑस्टिया में अंदर आता है, ऑस्टिया के थ्रू बाहर नहीं जाता है. तो ऑस्टिया, स्पॉन्जोसिल, ऑस्कुलम आउटसाइड. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी इज वेल मार्क इन. सो बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी जनरली फाउंड इन द ब्रेचियो, आई थिंक. Yes, bioluminescence is a property which is found in a Ctenophora, which is a small phylum. Only 5 to 6 characteristics are given in our NCERT. Ctenophora which are also called as a comb jellies. So Ctenophora will be the correct answer. Yes. Question number 11. Corals are the members of. तो coral किसके members होते हैं जनरली? Corals neither they are member of platyhelminths nor they are member of porifera. Or basically corals are not corded, they are cylindrata. So C will be the correct answer. Question number 12. Read the following statement carefully. हमें कुछ statement पढ़ने हैं. Here we are taking out about, मतलब किसके बारे में ये discussion चल रही है. दोनों तीनों कैरेक्टर हमें वो देखना है. Hook and sucker are present in forms. Hook and sucker. Hook are present in actually hook sucker are present in platyhelminths. Some of the absorbed nutrient from the host directly through their body surface. No, it is platyhelminths. Fertilization is internal development through the many larval stages. Yes, here we are talking about the platyhelminths. Correct. क्वेश्चन नंबर 13 फिर से वैसा का वैसा ही है. हमें रीड करके स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. Here triploblastics are Aschelminths. Alimentary canal is complete with a well developed muscular phalanx. An excretory tube removes the body waste from the body cavity through the excretory pores. Correct है. They are dioecious ना. Fertilization is internal. They are talking about arthropoda or Aschelminths, but I think so they are talking about Aschelminths. Arthropoda तो नहीं आएगा because they don't have excretory waste product through their excretory pore. So answer will be in arthropoda. Excretory is through the Malpighian tubule. So they are talking about Aschelminths. C. Question number 14. True segmentation of the body is first observed in. True body segmentation. अगर हम यहाँ में true body segmentation find out करें तो platyhelminths are flatworm, Aschelminths are roundworm.
Annelid are having a true body segmentations. So true segmentations are found in annelid only. चलिए डिस्कस करने की जरूरत नहीं, annelida ही होते हैं ये. क्वेश्चन नंबर 15, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन दी प्लेनेरिया इज. तो प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं? सो इन प्लेनेरिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज अ फ्लेम सेल्स आल्सो कॉल्ड सिलेनोसाइट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द excretory product and their elimination, that time also this option comes. So phlegm cells or selenocytes are excretory organ of planaria. Question number 16, animal having a dorsoventrally flattened body. Dorsoventrally flattened bodies are obviously platyhelminths. There is no need to discuss much because platyhelminths means flatworm. Dorsal and ventral both the side they are flatworm. Question number 17, the largest phylum of the Animalia is. We know that, मतलब मैं जब आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको कहा था largest phylum among the all major phylum is about Arthropoda. Arthropoda is a maximum phylum which have maximum species. Question number 18, the most distinctive features of Echinodermata is. Echinodermata का सबसे important feature क्या है? So presence of endoskeleton on calcareous ossicle, no. Absence of excretory system, नहीं. Excretory system होती है. Presence of water vascular system. Water vascular system is present in Echinodermata which make them separate from the other one. So C is the correct answer. Question number 19, which is an sanguivores? What is a sanguivores, guys? Sanguivores means blood sucker. सो जो मेल कॉकरोच होते हैं वो ब्लड सकर नहीं होते हैं, लेकिन फीमेल मॉस्किटो जो होते हैं वो होते हैं ब्लड सकर होते हैं. बिकॉज आपने देखा होगा कि जनरली मलेरिया इज कॉज्ड ड्यू टू द प्लाज्मोडियम, यस, बट इट इज ट्रांसफर्ड बाय द फीमेल मॉस्किटो कॉल्ड एज अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो. सो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो सक द ह्यूमन ब्लड. सो ब्लड सकर्स आर कॉल्ड एज अ सेंग्यूवर. और लीच जो एनिमल है वो भी blood suck करता है. So B and C means both B and C will be the correct answer. D option is correct. Question number 20, in mollusca the general body cavity is. mollusca के अंदर general body cavity कैसी होती है? So in mollusca cavity is a coelom. So coelom तो सब में है ही, but in mollusca cavity is a hemocoel because it store blood also. So answer of question number 20, I would say it's a C. Question number 21, which one prefer to breed in clean water and its larva parallel to the surface of water? मतलब इनमें से कौन से क्लीन वाटर में ब्रीड करते हैं और लार्वा सरफेस वाटर पे आते हैं? तो ये है एनोफिल्स, फीमेल एनोफिल्स. इसके पिछले वाले क्वेश्चन में गए. ये सब इंसेक्ट के नाम है. क्यूलेक्स मॉस्किटो मतलब मॉस्किटो के नाम है एडिस मॉस्किटो, फ्लेबोटोमस, female anopheles mosquito. So Anopheles is the correct answer of question number 21. Moving towards the question number 22. Phylum Mollusca can be distinguished from the other invertebrates. Phylum Mollusca can be distinguished from other invertebrates by the presence of bilateral symmetry and exoskeleton. ये तो features काफी में हो सकता है. Shell and segmented body. Shell is there but segmented body is not there. मेटल एंड नॉन सेगमेंटेड बॉडी, करेक्ट. इनके अंदर सेगमेंट्स नहीं होते हैं लेकिन मेंटल नाम के ऊपर जो कवरिंग होती है दैट इज देयर. सो मेंटल एंड नॉन सेगमेंटेड बॉडीज प्रेजेंट इन दी फाइलम मोलस्का. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 विल बी दी सी. क्वेश्चन नंबर 23, which one is correctly matched? Scorpion, spider, cockroach. Ventral solid ventral nervous system. आई थिंक ये करेक्ट तो लग रहा है, फिर भी हम आगे पढ़ते हैं. कॉकरोच, लॉक्यूस्ट, टीनिया. Actually, Taenia solium does not comes under cockroach category because Taenia solium is different and cockroach basically belongs to Arthropoda. Liver fluke, sea anemone, sea cucumber, bilateral symmetry नहीं. Centipede, prawn, sea urchin. Prawn also belongs to the Arthropoda. So यहाँ पे वो भी jointed है लेकिन centipede, urchin, sea urchin उसमें नहीं आएगा. So scorpion, spider, cockroach we would say correct answer. Yes, A is the correct answer. Question number 24. Malpighian tubules are their excretory organ of insect
मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं, थोड़े क्वेश्चन के पहले मैंने आपको कहा था माल्फेजियन ट्यूबुल इज जनरली फाउंड इन इंसेक्ट, दे आर एक्सक्रेटरी ऑर्गन, स्पेशली कॉकरोच में हमने देखा भी है। सो 24 आंसर क्वेश्चन इज ए। कंपाउंड आई ओकर इन इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा। अगर आपने कॉकरोच पढ़ा होगा तो कॉकरोच में आपने देखा होगा कि कंपाउंड आई इज प्रेजेंट इन कॉकरोच एंड कॉकरोच बिलोंग्स टू द इंसेक्टा, इट मींस इट दैट बिलोंग्स टू द आर्थ्रोपोडा। और कंपाउंड आई को कॉकरोच में हमने कहा है दैट इज वी जनरली कॉल्ड इट एज ओमेटिडिया। ओमेटिडिया मींस आई ऑफ कॉकरोच, यस आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पे गाइस हमारे 25 क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट 50% हमारी जर्नी इस वीडियो की कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आप लोगों को मजा आ रहा होगा और आपको क्वेश्चन का आंसर देने में काफी इंटरेस्ट आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 2 कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन सेंटीपेड, हनी बी, सिल्वरफिश, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड क्रैब आर। So actually they all belongs to near about they actually they are having jointed legs, yes, and plus they are having a yes, jointed leg is only feature present in A only, so they are having chitinous exoskeleton, correct? So A will be there. Green gland and trachea, green gland no, book, lung and antenna, compound eye and anal surface. Compound eye may be present, but in all of them compound eye is not present, but in all of them there is a jointed leg is present and chitinous exoskeleton. So A will be correct answer, yes. Question number 27. Which one of the following statement is incorrect? हमें incorrect ढूंढना है, yes. In cockroach and prawn, excretion of waste material occur through Malpighian tubule. Wrong. क्यों wrong मैं आपको बताता हूँ. In cockroach, excretion takes place through Malpighian tubule, but in prawn, excretion takes place through green gland, selenocytes. Yes. तो ये Malpighian tubule prawn के साथ नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट आधा करेक्ट है और आधा रॉन्ग है, तो इसके लिए हम इसको रॉन्ग करेंगे. आगे पढ़ लेते हैं. In ctenophores, locomotion is mediated by comb plates. Yes, therefore they are called comb jellies or comb plates. In fasciola, phlegm cells take part in excretion. That is also correct. Earthworm are hermaphrodite, and yet cross fertilization takes place among them. Earthworm hermaphrodite है, लेकिन उनको एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करने के लिए कंपलसरी होता है, बिकॉज उनकी बॉडी इस प्रकार से बनी हुई होती है. सो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हम देंगे ए. यस, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. Question number 28. Match the column 1 with a 2. 1 with a 2. Now अगर हम यहाँ पे मैच करें पोरीफेरा, पोरीफेरा में कैनल सिस्टम होती है. वाटर एंटर थ्रू ऑस्टिया एंड गोज आउट थ्रू दी ऑस्कुलम. यस, तो यहाँ पे ए को फर्स्ट के साथ कौन मैच कर रहा है? यस, सी और डी मैच कर रहे हैं. यस, देन बी एस्केल मीन्स मस्कुलर फेरिंग्स, एनिलिडा. देखो यहाँ पे अर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड लेग्स, और एनिलिडा में आएगा मेटामर्स. ठीक है, तो अब डी का देखिए, जॉइंटेड लेग. डी का फिफ्थ के साथ कहाँ मैच हो रहा है? तो डी का फिफ्थ के साथ कहाँ मैच हो रहा है? सॉरी यहाँ पे सॉरी उन्होंने फिफ्थ दिया हुआ है. यहाँ पे एक्चुअली जॉइंटेड लेग है ना, यहाँ पे 4 है, ये आई यहाँ पे होना चाहिए. तो डी का फोर्थ भी यहाँ पे दोनों पे मैच हो रहा है. फिर हम अगर देखें ये इकाइनोडर्मेटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम होती है, ई का सेकंड के साथ मैच हो रहा है, ये दोनों के साथ मैच हो रहा है. कंफ्यूजन काफी ज्यादा है. एनिलिडा सी का फिफ्थ के साथ मैच होना चाहिए, सी का फिफ्थ के साथ, तो यहाँ पे देखो मैच हो रहा है. सो ए फर्स्ट वन पोरीफेरा मैचिंग टू कैनल सिस्टम, बी एस्केल मीन्स मैचिंग टू दी मस्कुलर फेरिंग, सी Annelida matching to metamers, D Arthropoda matching to jointed legs, and E Echinodermata matching to the water vascular system. So C will be correct answer. Yes, correct. ऐसे ही आपको मैच द कॉलम 1 और 2 में से आपको निकालने होते हैं. अगर आपको पांचों के पांचों नहीं आ रहे, एक्चुअली मुझे तो पांचों आ रहे थे, लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट सोच रहा था कि अगर हम पांचों चीजें नहीं पता तो हमें 1 2 3 पता होनी चाहिए, तो हम एग्जैक्टली निकाल सकते हैं करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29. इन मोलस्क body is covered with an external skeleton made up of, so in spongian fiber no, chitin no, calcium carbonate, calcium silicate. calcium carbonate से basically इनका मेटल बना होता है outer covering. Question number 30. Select the correct option of classification of Rana tigrina.
तो राना टाइग्रीना में क्लासिफिकेशन कैसे आता है? कोर्डेट करेक्ट, वर्टेब्रेट करेक्ट, फिर ये आते हैं एम्फीबिया, तो एम्फीबिया ए और डी में मैच हो रहा है। फिर ये आते हैं नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा, टेट्रापोडा भी आएगा, टेट्रापोडा, लेकिन डायरेक्टली टेट्रापोडा नहीं आएगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उसे 30 का नेथोस्टोमेटा, आई मीन टू से सॉरी, कोर्डेटा वर्टेब्रेटा नेथोस्टोमेटा, कोर्डेटा वर्टेब्रेटा नेथोस्टोमेटा। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ना, ए में डायरेक्ट एम्फीबिया बताया हुआ है, वहां पे डायरेक्ट एम्फीबिया नहीं आएगा। कोर्डेट वर्टेब्रेट नेथोस्टोमेटा, यहाँ पे भी देखिए उन्होंने एम्फीबिया बताया है। कोर्डेट वर्टेब्रेट नेथोस्टोमेटा, यहाँ पे भी एम्फीबिया बताया। एम्फीबिया सेकंड पे नहीं आएगा, ना ही वर्टेब्रेट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एम्फीबिया नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी नेथोस्टोमेटा होना चाहिए। सो कोर्डेट वर्टेब्रेट्स नेथोस्टोमेटा, यस, देन एम्फीबिया, देन स्पीसीज का नाम, जीनस का नाम राना, और उसके बाद स्पीसीज आएगी ये हमारी टाइग्रीना। तो हम आंसर इसका देंगे बी। क्वेश्चन नंबर 31, कोर्डेट डिफर फ्रॉम नॉन कोर्डेट्स। कोर्डेट इज हैविंग notochord, they are having dorsal nerve cord and they are having pharyngeal gill slits and they are having means all, तो इसका आंसर हम जाएंगे all की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी, ह्यूमन बिलोंग्स टू सेम। अब गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी ये स्पीसीज अलग हैं, इनके जीनस भी अलग हैं। मंकी एंड चिंपैंजी, इनकी फैमिली भी अलग हो जाती है। ये चारों के चारों एक किस में आएंगे, ये ऑर्डर में आएंगे। सो डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। कोर्डेट्स हैव अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, नो, कोर्डेट्स हैव अ डोर्सल नर्व कॉर्ड। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, नो, हम वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे अंदर ओपन थोड़ी ना है, हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी। All chordates are vertebrates, no, all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrate. D, all vertebrates are chordates, so ये वाला ऑप्शन जो है वो वाला सही है। all vertebrates are chordate, हम vertebrates हैं लेकिन हम किसके अंदर में आते हैं, chordates कैटेगरी में आते हैं। so D will be correct answer। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। The animal having notochord throughout the life, सो एक ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी पूरी की पूरी लाइफ में हमें नोटोकोड अवेलेबल है। तो पूरी की पूरी लाइफ में एम्फियोक्सस है। अगर आप कोई देखना हो तो मैंने जो यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है किंगडम एनिमल, आप उस चैप्टर में देख सकते हो। एम्फियोक्सस विल बी करेक्ट आंसर। प्रोबोसिस ग्लैंड इन बैलेनोग्लोसस इज एसोसिएटेड विथ, तो प्रोबोसिस किससे एसोसिएटेड है, डाइजेशन नो, respiration no, reproduction no, it is responsible for excretion। सी आंसर आ जाता है 35 नंबर क्वेश्चन का। साइंटिफिक नेम ऑफ रोहू इज, रोहू इज अ वन टाइप ऑफ अ फिश एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज लेबियोरोहिता, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। जोलेस वर्टिब्रेट्स बिलोंग टू द ग्रुप, जोलेस। अब जोलेस जो होते हैं वो होते हैं अग्नेथा, अग्नेथा होते हैं, अग्नेथा। और जो फुल होते हैं वो होते हैं नेथोस्टोमेटा, तो इसका आंसर आई थिंक सो ए होना चाहिए, अग्नेथा। 38, विच वन ऑफ द बिलोंगिंग इज हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, हेमी मीन्स हाफ, कोर्डेटा मीन्स कोर्ड। सल्पा नो, बैलेनोग्लोसस, बैलेनोग्लोसस इज एग्जांपल ऑफ हेमिकोर्डेटा। 39, bird and mammal share one of the following characteristics as a common feature, bird and mammal। so birds don't have a pigment, we have a pigment। birds have a pneumotactic bones in which they can store air, we can't store it। viviparity, there are some mammal viviparous, there are some mammal oviparous also, there are some birds which are viviparous, there are some birds which are oviparous also। तो ये वाले तो मैच नहीं हो रहे, लेकिन बर्ड्स और हमारे अंदर कॉमन ये है कि उनका भी ब्लड है ना वार्म होता है और हमारा भी वार्म होता है। सो वी आर होमोथर्म्स, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी। क्या बात है, एकदम मस्त क्वेश्चन है।
ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और कीवी, अगर आप ये देखो, ऑस्ट्रिच इज एन अफ्रीकन बर्ड विच इज द टॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, which is very heavy. So due to their heavy weight, ostrich can't fly. Penguin generally found in Antarctica region. They are birds, but they can't fly. Kiwi is also the type of a bird which generally found in New Zealand like country, and it is also can't fly. कीवी एक फ्रूट का भी नाम आता है, कीवी बर्ड्स का भी नाम होता है. तो ये रनिंग बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन डेजर्ट ओनली. सो इसका आंसर हो जाता है सी, फ्लाइटलेस बर्ड. Question number 41. Which is not detectable in birds? Pectoral girdle, pelvic girdle, forelimb, hind limb. अगर हम ये देखें तो जनरली बर्ड्स के अंदर फोर लिम्स नहीं होते हैं. तो ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है जब मैं आपको पढ़ा रहा था. सो फोर लिम्स आर बेसिकली एब्सेंट इन बर्ड्स एंड दे आर कन्वर्टिंग देयर फोर लिम्स इनटू द विंग्स. सो आंसर क्वेश्चन ऑफ 41 इज सी, फोर लिम्स. All mammals without any exception are characterized by. All mammals without any exceptions are characterized by viviparity and biconcave red blood cells. We are having biconcave blood cells, लेकिन सभी मैमल के अंदर आरबीसी होते भी नहीं है, और विविपेरिटी भी नहीं है सभी के अंदर. किसी में ओविपेरिटी, किसी में सेंग्यूवरस प्रॉपर्टी है, सेंग्यूवरस मार्सुपियल प्रॉपर्टी है. And second, extra abdominal testis and found 4 chamber of heart. No, there are some mammal which are having a 3 chamber of heart. There are some mammal like a whale fish, they are not having 4 chamber of heart. C, heterodont teeth and 12 pairs of cranial nerve. We have a 12 pairs of cranial nerve, but we can't give a guarantee that all mammal will have same. Muscular diaphragm and milk producing gland. Milk producing gland is very important because just because of milk producing gland we are mammals, and we are also having muscular diaphragm. Correct. So D will be the correct answer. Question number 43. Proboscis gland are excretory organ of. तो proboscis gland कहाँ पाई जाती है? ये proboscis gland अगर हम देखें तो ये हेमिकोडेटा के अंदर पाई जाती है. So 44 का क्वेश्चन देखते हैं. In which of the following vertebrates नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ? नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ में प्रेजेंट होते हैं. तो जनरली जो कार्टिलेजिनस जो फिशेस होती हैं, मतलब कॉन्ट्रीचिट्स, उनके अंदर नोटोकॉर्ड पूरी की पूरी लाइफ में होते हैं. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45. मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, हार्ट इज 4 चेंबर, प्रेजेंस ऑफ लंग्स एंड ऑल ऑफ अबव. यूनिक मैमेलियन फीचर्स, यहाँ पे देखिए लंग्स तो प्रेजेंट है ही. हमें यहाँ पे उन्होंने पूछा है यूनिक फीचर्स. प्रेजेंस ऑफ लंग्स सही है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ लंग्स इज फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ ब्लू फिश, ब्लू व्हेल फिश. यस, तो कुछ एनिमल हमारे जो पानी में भी हैं, मैमल होते हैं, तो उनके अंदर लंग्स नहीं होंगे. हार्ट इज 4 चेंबर नहीं. मेमोरी ग्लैंड इज कंपल्सरी, ए. क्वेश्चन नंबर 46. क्लेस्पर्स आर प्रेजेंट इन. तो क्लेस्पर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? Clasper is actually one type of a sex organ. Clasper is a one type of sex organ which is found in a cartilaginous fishes, means chondrichids. So A और B में से ऑप्शन होगा, but it is present in the pelvic fins. A is correct answer. Question number 47. फिर से हमें मैच द पेयर करना है. तो limbless reptiles. Limbless reptiles, पाइथन, अजगर लिम्बलेस होते हैं. फिर जोलेस वर्टिब्रेट्स, जिनको जो नहीं होते हैं वो कौन होते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड्स. देखो यहाँ पे कौन है? फ्लाइटलेस बर्ड्स इज पेंगुइन. एंड और ये लैम्प रे और इलेक्ट्रिक रे जो है वो फाइंड आउट करना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है. ट्री फ्रॉग विल बी एम्फीबियन. तो आप 1 by 1 मैच करो. ए, लिम्बलेस रेप्टाइल मस्ट बी मैच टू सी, पाइथन. सो यहाँ पे देखिए बी, सी और डी तीनों में ए का थर्ड के साथ मैच किया हुआ है. फिर देखिए जोलेस वर्टिब्रेट्स, जोलेस वर्टिब्रेट्स आप इसे छोड़िए फिलहाल. एम्फीबियन देखिए सी, सी एम्फीबियन इज ट्री फ्रॉग. सी मस्ट बी मैच टू सेकंड. तो सी यहाँ पे सेकंड यहाँ पे मैच हो रहा है. करेक्ट. फिर फ्लाइटलेस बर्ड्स, ई, E must be matched to the penguin.
करेक्ट। सो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है 47 का सी, करेक्ट। 48, which of the following group of 3 animals each is correctly matched with their one character morphological feature? तीनों में से एक करेक्ट मैच करना ही चाहिए। सेंटीपेड, प्रॉन, सी उर्चिन, जॉइंट अपेंडेजेस, ये एक सेम कैटेगरी में नहीं आते हैं। कॉकरोच, लोक्यूस्टा, टीनिया, ये शायद हमारा क्वेश्चन एक बार हो चुका है हमारा। स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, लिवर फ्लूक, सी एनिमोन, सी कुकुम्बर, बायलेटरल सिमेट्री। क्वेश्चन नहीं हो चुका है, ऑप्शन से नियर अबाउट सिमिलर थे। हमारा डी आंसर हो जाता है यहाँ पे, दे ऑल आर हैविंग बायलेटरल सिमेट्री। सी कुकुम्बर they get divided into 2 parts, sea anemone also divided into 2 parts, liver fluke also divided into 2 parts by vertical section. Question number 49, correct characteristics of class reptilia, fresh water animal with bony endoskeleton, air bladder to regulate buoyancy। नहीं, फ्रेश वाटर में जनरल पाए जाएंगे रेप्टिलिया, ऐसा नहीं। मराइन एनिमल विथ अ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, बॉडी कवर्ड विथ अ प्लेकोइड स्केल। Placoid and tenoid scale are the features of fishes, not the reptilia. Body covered with a dry cornified skin, scales over the body of epidermis, and they do not have external ear. External ear मतलब बहरे कौन होते हैं? सांप होते हैं, तो सांप है रेप्टिलिया। Body covered with a moist skin which is devoid of scale. Ear is represented by tympanic, alimentary canal, urinary and reproductive tract open into the common cloaca। इसका आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट। स्पॉन्जेस कैप्चर द फूड थ्रू द, तो मैंने आपको कहा स्पॉन्जेस कैप्चर द फूड थ्रू द कोइनोसाइट जस्ट बिकॉज स्पॉन्जेस आर पोरीफेरा, तो इसका आंसर हो जाता है यस, इसका आंसर हो जाता है ए। सो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर में से 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू related to the NEET exam preparation. So thank you so much guys for watching this video. This topic was chapter 4 Animal Kingdom 11th standard CBSE NEET, 50 most expected MCQ for NEET preparation. To pass this NEET you must watch this because ये वीडियो ही नहीं एक सक्सेस का फॉर्मूला है। Yes, thank you so much, have a good day. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारा वीडियो एंड तक देखा। ऐसे ही हमें ढेर सारा प्यार देते रहे और हमसे नॉलेज गेन करते रहे। मैं आप लोगों से फिर से एक बार दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचते रहे। लोग सब्सक्राइब करने में काफ़ी कंजूसाई करते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन करने के लिए कुछ पैसे नहीं देने होते, ये सिर्फ आपको, अगर आप एक सब्सक्राइब हमारा बढ़ाते हो तो जैसे ही हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं हमारे अंदर और वीडियो बनाने की इच्छा होती है, एक्साइटमेंट और बढ़ती है और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स इन सर्कल, दोज हु आर ऑल्सो रिलेटेड टू द बायोलॉजी फील्ड। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।